Hello children, how are you doing? I hope you all are fine. So today's topic I'm going to take is universe and the earth. So आज हम बच्चों इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Are you people ready to start? Let's start. The universe. Have you ever wondered what is a sky in which you see the sun, the moon and millions of stars? Actually, the sky is a vast expanse of empty space. It contains the sun, the 8 planets, millions of stars and other heavenly bodies. All these together form the universe. समझ में आया बच्चों? आकाश जिसके हम लोग जहाँ हर रोज़ हम आकाश की तरफ देखते हैं, जहाँ आप सूरज, तारे, सब मिलियंस ऑफ स्टार्स यू कैन सी, राइट? वही जो एम्प्टी स्पेस है ना, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उन्होंने कवर किया हुआ है उसे. इसे ही यूनिवर्स कहा जाता है बच्चों, राइट? Did you know the sun is also a star? It looks bigger compared to the stars, but it is closer to the planet Earth. आपको लगता है ना सन कितना बड़ा है, पर बच्चों असल में ये भी एक स्टार है. ओके, एंड हमारी जो अर्थ है ना उसके बहुत क्लोज है, तभी तो बहुत गर्म फील होता है ना हमें. यस, गैलीलियो, अ फेमस साइंटिस्ट, was the first man to see the sky through a टेलीस्कोप. जैसे टेलीस्कोप में हम देखते हैं ना, वो पहले पर्सन थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार आकाश में, यस, टू सी द स्काई. आपको टेलीस्कोप उन्होंने यूज़ किया था, जैसे आप आजकल यूज़ करते हो, उन्होंने पहली बार इसको यूज़ किया था. Origin of the universe. Most scientists believe that universe was born out of a huge explosion called the Big Bang many years ago. At the time of Big Bang, things in the universe were hot and tightly packed. After the explosion, all the things began to cool down and grow bigger. है ना, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ तो ये तो ठंडी होके और बड़ी हो गई. The universe was born. The stars and the other heavenly bodies such as our planet Earth were formed. तो इसी से बनी हमारी स्टार्स और जो हेवनली बॉडीज़ हैं, और हमारी जो प्लैनेट अर्थ हमारा जो है वो फॉर्म हुआ, राइट? ओके बच्चों, स्पेस एंड द अर्थ. द मिल्की वे गैलेक्सी is the home of our planet Earth and the solar system. It contains approximately 200 billion stars, and most of which are not visible from Earth. Everything we see in the sky is the part of Milky Way galaxy. Earth is the only planet in the solar system on which life exists. आप जानते हो ना, सिर्फ एक धरती ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है. इसके अलावा और किसी भी प्लैनेट पर अभी तक लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट? द अर्थ, सन एंड द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज अ टाइनी पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. इट इज ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा. यस बच्चों, मैं अंडरलाइन दिस. इट इज ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा. आकाश गंगा के नाम से भी इसे बुलाया जाता है. इंक्लूडिंग आवर अर्थ, sun, the moon and the stars, all are celestial bodies. Yes, all are celestial bodies. Underline this also. Our Earth is one of the planets of the solar system which revolves around the sun on a fixed path with its natural satellite, the moon. The Earth completes its rotation in 24 hours. Yes बच्चों, जो धरती सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, वो एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है. The stars are huge heavenly bodies. They have their own light and heat. The bright star that we see in the north sky in the pole star. Some groups of the stars are particular in the sky, resembling with the outline of animals. आपने कभी देखा होगा आकाश में, है ना? आप रिजेंबल करते होंगे कि अरे ये तो उस एनिमल की तरह दिख रहे हैं. बहुत सारे स्टार्स जो ग्रुप में होते हैं वो हमें एनिमल्स की तरह लगते हैं. और सम अदर शेप्स.
These groups of stars are called constellations. Okay? Now some constellations are Ursa Major, Great Bear, Scorpio, Orion, Hunter and Leo, Lion. There are about 88 constellations, right? Now first fact, the sun rays reach the earth in 8 minutes. जो सन की रेजेस हैं, जो सूरज की किरणें हैं, वो हमारी धरती तक 8 मिनट पे पहुंच जाती हैं. स्टार्स इन अ क्लियर नाइट स्काई, आप पिक्चर जो देख रहे हैं, द ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन एंड पोलर इज और पोल स्टार, और ध्रुव तारा भी बोला जाता है इसे. The sun and the solar system. Now we will read about this. The sun is the star nearest to our earth and it is a round huge ball of fire. एक बड़ा सा आग का गोला made up of hot burning gases. It is the center of the solar system. It gives us light, heat and energy. One can use the solar energy wisely for different purposes. आप लोग भी शायद यूज करते हो, पूछिएगा अपनी मम्मा पापा से. Such as cooking, lighting, heating, water, moving machines and car etc. तो हम सोलर लाइट को इन सब कामों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट? The solar system. In the space, the sun, the planets, their satellites and asteroids all together form the solar system with sun being their center. यहाँ पर center जो part होता है वो sun का part होता है बच्चों. The planets are made of rocks, metals and gases. जो आप planets देखते हो ना, वो सब इन सब चीज़ों से बने हैं, चट्टानों से, मेटल से और बहुत सारी गैसेस से. They revolve around the sun on fixed paths called orbits. तो उस fixed path को orbit कहते हैं. Planets do not have any light of their own. We can see them at night because they reflect the sun's light. बच्चों, जो हमारे प्लैनेट है वो सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं. इनकी रोशनी नहीं होती, इनका खुद का कोई लाइट नहीं होता. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. हियर द प्लैनेट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो मैं आगे जो आपको बताने जा रही हूँ वो आप इनके डिस्टेंस के बारे में, जो सूरज से इनका डिस्टेंस है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. डिड यू नो देयर आर सम वेरी स्मॉल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? जानते हैं आप इसके बारे में? They are called dwarf planets. Ceres, Pluto and Makemake are some dwarf planets. Mercury is the smallest planet in the solar system. It is nearest to the sun. Venus is the brightest planet. The Earth, or our home planet, is the third planet from the sun. The Earth, our home planet, is the third planet from the sun and it has one satellite, the moon. It is the only planet in the solar system to have life, water and air. Mars is the smallest planet. It is a small planet. बहुत छोटा सा planet है ये. And Jupiter is the largest planet in the solar system. बच्चों, आपको columns बनाने पड़ेंगे. कौन सा planet छोटा है, कौन सा planet बड़ा है, ताकि आप revise कर सकें. Saturn is the second largest planet in the solar system. It is famous for the ring around it. इसके चारों तरफ घेरे हैं, okay? चारों तरफ rings बने हुए हैं. Uranus is the third largest planet in the solar system. Neptune is the 8th planet from the sun. Also, there are chunks of rocks and metal found in the solar system. These are called asteroids. A comet is a mass of rice, dust and rocks particles with a long tail. ठीक है, ये सब के बारे में आपने जो रीड किया है, इस सब की इंफॉर्मेशन आपको अपने आप पास नोट्स बनाकर रखनी है बच्चों, ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकें. अर्थ, a living planet.
The Earth is the third farthest planet from the Sun, which rotates on its axis in west to east direction once in every 24 hours. जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसका एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है और यही अर्थ जो थर्ड प्लैनेट है, थर्ड फादेस्ट प्लैनेट है सन से, वो रोटेट करता है इसके एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट. Right? This movement of the earth is known as rotation of the earth, and besides rotation, our earth goes around the sun in 365 1/4 days, यानी कि 1 year. This movement of the earth around the sun is known as revolution of the earth. तो जो इसकी मूवमेंट है, जो चारों तरफ ये चक्कर लगाती है धरती सूरज के, उसको हम revolution के नाम से जानते हैं. Got it? Okay. The earth has air, water, soil, suitable temperatures and conditions to support life. So, there is life on this planet. So, there is life on this planet. Our earth is the only planet in the solar system where life exists. सब जानते हैं कि सिर्फ धरती ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है, और तो हम कभी अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए ऐसा प्लैनेट जहाँ पर हम रह सकते हैं. सो फास्ट फैक्ट, यानी हम ऐसे कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जल्दी से समझने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते. द वर्ड प्लैनेट मीन्स वॉन्डरर. ऑल द प्लैनेट्स आर नॉट स्टेशनरी. Until 24th August 2006, Pluto was considered as the 9th planet to the solar system. Now Pluto has been categorized as a dwarf planet. The planets that have rings around them are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Note कर रहे हैं ना आप? Planets and satellites do not have their own heat and light like stars, so they all shine in the sky as they reflect back to the light of the sun. सो ये फैक्ट ऐसे फैक्ट थे शायद जिनके बारे में आप भी नहीं जानते थे. तो अभी आप क्या करने वाले हैं, इनको अपने किसी नोटबुक में नोट करके रखें ताकि आप जल्दी से क्विकली अपने दोस्तों से पूछ सके इसके बारे में. ओके. द मून, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस. एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. जैसे धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे ही हमारा जो चंद्रमा देवता है वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? धरती के चारों तरफ. वेरी गुड. सो इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट इज़ अबाउट 3,84,000 kilometers away from the earth. It takes 29.3 days to revolve around the earth. Reflection of the light and that it gets from sun. Moon is much smaller than the earth. अब जैसे धरती सन से छोटी है ना, वैसे ही मून धरती से छोटा है. It has no water and air. यहाँ पे ना तो पानी मिलेगा आपको, ना ही हवा होगी. So there is no life on the moon. Only a part of the moon is lighted by the sun, which we see at night. तो जो हम चंद्रमा की रोशनी रात को देखते हैं ना, जो आप देखते हो रात को जो रोशनी चमकते हैं चंद्रमा, वो सन की लाइट से होता है ऐसा. ठीक है. तो यहाँ पे हवा पानी नहीं होने की वजह से जीवन भी संभव नहीं है और इनकी खुद की रोशनी भी नहीं है. फेजेस ऑफ मून बेटा. Phases of the moon appears to change its shape. आप देखते हो कभी आपको मून की शेप हाफ दिखाई देती है, कभी फुल मून होता है, कभी बिल्कुल छोटा सा मून होता है. तो ये मून की शेप्स हैं बच्चों, जिनको हम phases of the moon बोलते हैं. The changes in the moon shapes are called phases of the moon. Sometimes we do not see the moon at all in the sky. It is known as the moon, new moon or the अमावस्या. आप देखते हैं अमावस्या के दिन बिल्कुल अंधेरा होता है, उस दिन मून नहीं होता है, राइट. तो उसको न्यू मून भी बोला जाता है. डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून आप पिक्चर में देख पा रहे हैं. ओके. 2 days after अमावस्या, the lighted phase of the moon increases. So we get an opportunity to see beautiful crescent moon in the sky. Crescent moon is the curved shape of the moon that we see. जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं. Within an interval of 15 days, the visibility of moon gradually increases
एंड वी सी द कंप्लीट राउंड ब्राइट फुल मून, है ना। 15 दिन के अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा इसकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और ये हमें पूरा दिखाई देना शुरू हो जाता है, यानी फुल मून, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन ये पूरा दिखाई देता है और अमावस्या के दिन छिप जाता है। Since then, the visibility of moon starts decreasing gradually. तो उस दिन के बाद इनका ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। Did you know what is an eclipse? Eclipse is blocking light of a heavenly body by another heavenly object in the space. So generally, during an eclipse, there is a partial loss, of light. Example, in the solar eclipse, the sun is obscured by the moon. Okay, fine, bachcho. Now we are having artificial satellites. Many artificial satellites have been sent into the space by the scientists and these are quite helpful to us in many ways. तो आपने जैसा देखा हमारे साइंटिस्ट काम करते रहते हैं उस एंड सैटेलाइट्स हमारी स्काई में, आकाश में हमारे भेजते रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर प्राइड। हाउ? चलिए, वी आर प्राउड ऑफ आर एस्ट्रोनॉट्स, जो भी हमारे सैटेलाइट्स के लिए काम करते हैं। द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स राकेश शर्मा जी, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू द स्पेस। तो उन्होंने वहाँ जाकर पता लगाया कि वहाँ पर, जैसे आपको पता है अभी कि मून पर ना हवा है ना पानी है, वो कैसे पता चला? इन लोगों के द्वारा ही बेटा पता चला दैट they just went there and they tried to find out कि वहाँ पर कैसी लाइफ है, right? Did you know the astronauts from the USA named Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon? सबसे पहले वही थे जो उन्होंने लैंड किया था। They took many photographs of the earth from the space and brought back the samples of rocks from the moon. तो उन्होंने वहाँ से धरती की फोटो भी खींची और वहाँ से कुछ रॉक्स के सैंपल लेके आए ताकि हम पता लगा सके कि मून पर क्या किस तरह की मिट्टी है, रॉक्स कैसी हैं। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस बच्चों, चूज द राइट आंसर from these options. Options are given, 3 options are given. Among those you have to write the right option. For example, how many planets are there in our solar system? So you have to take one, that is 8 planets. Good job. Our earth is a tiny part of the galaxy called Milky Way. Good job bachcho. The largest planet in the solar system is Jupiter. Good job. How far away is the moon from the earth? 3,84,000 kilometer. Very good. Now we have some exercises to do. बेटा जब हम चैप्टर करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, देन यू हैव टू जस्ट डू बेस्ड ऑन दैट फॉर प्रैक्टिस यू हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस। तो आइए देखते हैं क्या एक्सरसाइजेस दी गई हैं। सेक्शन 1 में हमारे पास ए पार्ट ओरल क्वेश्चंस। सो ओरल क्वेश्चंस यू हैव सम लाइक व्हाट इज़ अ न्यू मून। न्यू मून क्या है, आपने पढ़ा है उसके फेजेस के बारे में। तो न्यू मून के बारे में आपको बताना है कि जैसे आपने पढ़ा है अमावस्या के दिन क्या होता है, पूर्णिमा के भी दिन कौन सा मून होता है, राइट। हाउ लॉन्ग डज द मून टेक टू रिवॉल्व राउंड द अर्थ। मून को कितना टाइम लगता है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में। एंड हु इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, याद है आपको? वेरी गुड, सन। व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज। अब आप जाके देखें आपकी सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं बच्चों। अब वो प्लैनेट आपने ऑरली, मैंने आपको बोला था आप टेबल बनाएं, है ना। टेबल बनाने के बाद जो भी आपके सेलेस्टियल बॉडी के अंदर में जो सन के चारों तरफ जिनकी खुद की लाइट नहीं है, जो सूरज से लाइट लेते हैं, वही सेलेस्टियल बॉडी के बीच में आते हैं, राइट। नाउ वी हैव सम फिल इन द ब्लैंक्स इन बी पार्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए हमारे पास हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। लाइक द डैश इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो क्या है? Sky. Very good. The earth completes its dash in 24 hours. क्या complete करती है अर्थ? Rotation. Good job. There are dash planets in our solar system. कितने? 8. Very good. Dash is the 8th planet from the sun.
Neptune. Good job, my dear children. Good job. Now the fifth part is dash moon is the curved shape of the moon that we see. तो कौन सी है वो? Crescent. Very good बच्चों. Now we have C part. Write T for true and F for false. Neil Armstrong was the first man to step on the moon. Yes, good job. True. We do not see the moon at all. It's known as the full moon. False. Okay, the sun is the star nearest to our earth. True. Good job. The movement of the earth on its own axis is known as rotation. Okay. Yes. Mars is the only planet in the solar system where life exists. No, life वहाँ exist नहीं करती है. Okay, so false. D part, give one word for each of the following. A big body of head gases and light. Star. Good job. Heavenly bodies that move around the sun in a fixed path. Planets. Okay, the family of the sun and the 8 planet is called solar system. Very good. A heavenly or artificial body revolving around a planet is called satellite. Good job. A group of stars forming a particular pattern. Constellation. Very good बच्चों. So बच्चों, write the names of the planets in the order in which they appear in the solar system. You may take the help of diagrams given below. आप डायग्राम की हेल्प से जो भी सीक्वेंस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की है उसको आपको लिखना है नंबर वाइज. लाइक फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट प्लैनेट इज मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, देन जुपिटर, सैटर्न, देन यूरेनस एंड नेपच्यून. Okay, likewise you can write what I told you. Now in section 2, F part, write the notes on short notes on each of the following. तो आपको simply अपने चैप्टर में से यूनिवर्स, मिल्की वे, पोल स्टार, न्यू मून, फुल मून एंड एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर एक छोटे छोटे 2-3 लाइन में आपको नोट्स बनाने हैं. 3-4 लाइन्स में इनको एक्सप्लेन करिएगा. एंड व्हेन यू राइट दिस, टेक द हेल्प ऑफ योर चैप्टर बच्चों. इन जी पार्ट, मैच द कॉलम्स. सन को आप किससे मैच करने वाले हैं? जल्दी से बताइए. सन इज स्टार. वेरी गुड. गैलेक्सी, गैलेक्सी इज, याद है आपको आकाश गंगा मैंने आपको बताया था, राइट. सैटर्न, सैटर्न को आप एक प्लैनेट है. Great Bear is the constellation, and then you have moon, that is satellite, right? Okay, now we have H part where you have to answer the following questions. What do you mean by the solar system? बहुत easily आप चैप्टर में से निकाल सकते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है. Likewise, why is there no life on the moon? क्यों नहीं है? Oh yes, ना पानी है ना हवा है, no air, no water. That's why life is not possible there. नंबर 3, हाउ आर डेज एंड नाइट्स कोस्ट. कैसे दिन और रात होते हैं इसके बारे में लिखिए. व्हाट आर द आर्टिफिशियल नाइट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिलेशंस, हाउ डज द मून शाइन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. इन सब के बारे में आपके चैप्टर में आपने रीड किया है. सो जस्ट चेक एंड राइट द आंसर्स. एंड इन सेक्शन नंबर 3 you have some activities like obtain a star map from the local library. किसी भी local library से आप ला सकते हैं. Take a pair of binoculars and go out on a clear starry nights, जहाँ पे बहुत सारे तारे हों आकाश में. Refer to the star map you have and identify the stars visible in the sky. तो जैसे भी तारे आपको आकाश में दिखाई दे उनसे उन्हें मैच करिएगा, जो आपके पास मैप है ना उससे. राइट डाउन द नेम्स ऑफ द स्टार्स यूजिंग द स्टार मैप एज अ गाइड. तो आप वो स्टार मैप को एज अ गाइड यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा हर समय आपको गाइड करते रहेंगे कि इस स्टार का नाम ये है और इस स्टार का नाम ये है. एंड नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो फन टू डू है, मज़ा आएगा आपको करते हुए. भोलू एंड गोलू रीड अ बुक अबाउट प्लैनेट्स. दे लर्न दैट प्लैनेट इज़ अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस. द अर्थ इज़ अ प्लैनेट. The Earth and 7 other planets move around the sun. Unscramble the names of the planets and write them below. So अभी देखिए, आपको ये जो अनस्क्रैम्बल करने हैं उसके लेटर्स को हमने जंबल कर दिया है बेटा.
हमने उसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। सो आपको बनाना है इन्हें, जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, है ना, ये सब जो आपने प्लैनेट रीड किए हैं उन प्लैनेट्स को पता लगाइए कौन से प्लैनेट के क्या स्पेलिंग होने चाहिए। हमें इन्हें जंबल से अनजंबल करना है। गॉट इट? सो बच्चों, आपने जो भी इस चैप्टर में रीड किया है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू हैव नाउ। सो अभी इस इंफॉर्मेशन को आप कैरी करें, उसके नोट्स बनाएं और अच्छे से रिवाइज करें, दोबारा चैप्टर रीड करें एंड हैव फन, एंजॉय बच्चों।